Okay, hi everyone. Just let me know I'm audible. Yes, sir. Okay, you guys can respond in the chat box. Okay, that's fine. So just start. So before we'll proceed in this particular session, we have some information. Just let me know how many of you are from South India, like those who belongs to English background, because we have mentioned like these sessions will probably will proceed in Hindi language. Okay, that's fine. Let's get in English, sir. Okay, so sorry for you guys. That's why I'm asking. So it's better to clear in a beginning of this. Okay, fine. So this is the third session. That's why we have shared like the Black Hat part 3, and I'm not going to take this session, but we have arranged these sessions, and most probably in futures, like part 4 and part 5 will be coming soon in this month, or I guess next month. Okay. So part 1 and part 2 is relatable with the carding, and जिसके basis पे maybe we'll plan part 4 उस पे आ सकती हैं, like how to use and all, जिन्होंने दो parts देख रखे होंगे उस पे, right? So part 1 and part 2 related जो contents हैं वो आपकी part 4 में आएंगी. So this is again वो ये एक Black Hat की series है. That's why we have named it as Black Hat part 3. Okay, you guys have like just आपने देखा होगा posters पे whatever the modules we are going to cover up उसमें दी गई थी. Let's see कितने time sorry इतने time पे कितना contents cover up हो पाता है. So we'll deal accordingly. Okay. Other than this. From like Slipstream, so we are having an information जो कि internship के regarding थी. So we have shared a internship from the cyber cell जिसके बारे में notifications मैंने out कर दी थी. So you guys can apply there. वो आपके YouTube पे होंगे, LinkedIn पे होंगे. So जिनको नहीं पता, गुरुग्राम साइबर सेल की notifications अभी out हो गई. How to apply? So YouTube पे आप जाके check कर लेना, लक्सर search करना उस पे आ जाएगा, and then check out the latest videos. Okay. तो उस पर आप देख के अप्लाई कर देना. एंड इन अ मंथ ऑफ अगस्त देयर विल बी एन ओपनिंग फॉर द जॉब वैकेंसीज बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो साइबर सेल्स में ओपनिंग्स आएंगे जिसके बारे में मुझे दूसरी इन्फॉर्मेशन देनी थी. सो नॉट इन दिस पर्टिकुलर टुडे सेशंस. tomorrow we are having an sessions with guest lectures with I guess NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. तो उनके साथ में एक सेशंस हो रही हमारी जो कि इस बार इंटर्नशिप में ट्रेनिंग देंगी, राइट? तो उस सेशंस में मैं बाकी चीजें आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट्स में जो ओपनिंग्स आने वाली हैं, व्हेन एंड इन विच डिपार्टमेंट एंड इन विच स्टेट. ओके, सो ओके, so that is the first information. And third information like we have already shared, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा था, राइट? कि आपको अभी कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ब्लैक हेड्स के लिए सिलेक्ट करे जाएंगे, नॉट बाय मी, बट हाँ ठीक है, कुछ जगहों पे मैं कनेक्टेड रहूंगा वहां पे. तो उसमें भी आई गेस मुझे लगता है 7 to 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होने हैं. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशंस देयर विल बी अ ग्रुप लिंक दैट विल बी शेयर्ड. और उस ग्रुप का सिर्फ मोटो ये है कि सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाने के बाद जो है दैट ग्रुप विल बी डिसमिस्ड, राइट? इज दैट क्लियर टिल नाउ? Regarding the internships and all, tomorrow we'll let you know. वो तो हमारे officials हैं, so we'll share out that thing. Okay.
एंड फॉर द पब्लिक सेशन देयर आर सो मेनी ब्लैक हेड्स ग्रुप्स आर देयर जिनके साथ में जो मेरे साथ में भी कनेक्टेड हैं, एंड आई नो कि वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं. सो उनमें से कुछ लोगों को पिक करके वी हैव अरेंज द सेशंस कि दे कैन इवन गाइड लाइक जो भी ब्लैक हेड्स के जो मॉड्यूल चलते हैं उसमें, सो दैट स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर वेल. और उस पे अभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी ऐड ऑन करे जा रहे हैं. दैट्स व्हाई आई हैव कनेक्टेड. अदरवाइज टोटली इलीगल के लिए मैं ज्यादा कनेक्टेड नहीं होता हूँ. बट हाँ, इसमें आपका 60 to 70% लाइक वो अटैकिंग साइड में जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द 20% whenever I'll connect ना, so जितने भी मॉड्यूल्स हम कवर अप करें लाइक कार्डिंग साइड में, so how we can like investigate, like how we can convert those knowledge in investigations for the or like catching the black hat criminals, right? So उनको कैसे कैच करा जा सकता है, और इस केसेस को समझने के बाद हमें कितनी जानकारी मिलेगी कि ट्रेस आउट करने के लिए, लाइक इट्स रिलेटेड टू द एटीएम कार्ड्स की डिटेल्स आपको निकालनी हो, या आपको सॉरी डार्क वेब से किसी भी पोर्टल्स के थ्रू आप प्रोसीड कर रहे हैं तो वहां पे ट्रेस आउट क्या चीजें होती हैं. इवन अभी साइबर सेल भी इस पे ज्यादा वर्किंग कर रही है ऑन ट्रैकिंग ऑफ VPN, लाइक इफ somebody's are sorry using the VPN or like proxies, or they are doing some activities in a dark web or like Tor browser. So उनकी ट्रेसिंग कैसे होती है उन पे अब मैं बताऊंगा, तो वो तभी आपको समझ में आएंगी when you have the knowledge, like वो एक्टिविटीज होती क्या है. If you have no knowledge like कि bitcoins के थ्रू पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, like what is like bitcoin wallet or like bitcoin addresses or like crypto addresses, okay, और आप किस वेंडर्स को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस. तो विदाउट नोइंग ऑल दोस थिंग्स यू कांट लाइक आप नहीं पकड़ सकते हैं ब्लैक हेड क्रिमिनल्स को. तो वहां पे लैगिंग आती है थोड़ी सी, ठीक है. सो ये इस साइड में इंफॉर्मेशन था. सो लेट्स सी दोज विल सेलेक्ट इन फ्यूचर्स, जिसकी सिलेक्शन मई में ही होनी है. एंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडस्ट्री रिलेटेड और जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स एंड ऑल, जो कि जैसा हमने बता रखा था NIC, IBM और कई सारे और प्रोफेशनल्स को हमने इनवाइट कर रखा है. Those are going to train in a summer internship. That is for cyber security, okay. And for web developments, also like we have some professionals जो कि आपके already working companies में हैं, और वो लोग वहाँ से गाइड करेंगे ऑनलाइन बेसिस पे, and probably both in offline. Some guests are invited to join offline. So we are planning accordingly. उसकी इन्फॉर्मेशंस कल थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, एंड विद इन अ वीक हम पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि क्या कंटेंट्स वहाँ पे कवर अप होने जा रहे हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल, और कितने सीट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी. ओके, दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया. ओके, सो दैट्स इट. आई गेस आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं. वेट अ मिनट, हाँ वेट अ मिनट. Okay, thank you, sir. I'm audible. हाँ, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्रैकिंग पे है. तो क्रैकिंग हम लोग करते क्यों है, सबसे पहली बात तो ये होती है, जैसे कि हम लोग कभी मतलब कोई भी प्रीमियम अकाउंट होता है, जैसे मान लो अमेजॉन प्राइम हो गया, नॉर्ड VPN हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हुल्लू हो गया, मतलब इस सब का मतलब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पैसे पे करने पड़ते हैं उसके लिए हमको. लेकिन हम लोग क्रैकिंग की हेल्प से उसको फ्री में यूज कर सकते हैं. उसके मतलब जो बहुत सारे लोग इसको मतलब बाई किए रहते हैं, उसका ID पासवर्ड हम यूज कर सकते हैं और पैसे कर सकते हैं. तो हमारा जो आज का सेशन है आज उसी पे बेस्ड है. तो क्रैकिंग में सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या होता है. तो क्रैकिंग के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है कीवर्ड्स. और ये कीवर्ड्स होते क्या हैं. कीवर्ड्स बेसिकली वो चीज होता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ क्रोम पे गूगल में जाके कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं. मान लीजिए हम नेटफ्लिक्स टाइप कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स टाइप किया हमने. हमने ये जो पैरामीटर दिया है, एक हमने जो पैटर्न लिखा है नेटफ्लिक्स, ये होता है हमारा कीवर्ड. और इन कीवर्ड्स की मदद से ही हमको एक फाइंड करना होता है गूगल डॉक्स. सेकंड हमारा जो आता है कीवर्ड्स के बाद होता है डॉक्स. और डॉक्स कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए हमने जो अभी नेटफ्लिक्स यहाँ पे सर्च किया, इसके बाद हमने यहाँ सर्च रिजल्ट में देखा चूज योर प्लान साइन इन नेटफ्लिक्स इंडिया प्लान एंड प्राइजिंग मूवीज. या नेटफ्लिक्स पे जो भी मूवीज होते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स ये भी हो गया. उसके बाद फिर
मान लीजिए हम नेटफ्लिक्स पे कोई ट्रेंडिंग मूवी सर्च करते हैं, तो ये सब जो हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स, और इन कीवर्ड्स की मदद से ही हमको गूगल डॉक्स जो भी डॉक्स होते हैं उसको फाइंड किया जाता है। तो अगर हम इसको मैन्युअली बनाएंगे, जो भी होता है हमारा ये कीवर्ड्स, अगर हम इसको मैन्युअली फाइंड करेंगे तो इसमें बहुत सारे टाइम लग जाता है। तो इसको हम लोग, एक वेबसाइट है keywords.io, 65 कीवर्ड्स फाइंड हो गए हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे डॉक्स को जनरेट करने के लिए। तो दूसरा हमारा आता है डॉक्स। डॉक्स वो रिजल्ट होता है जो हम कीवर्ड्स को किसी भी, मतलब जैसे हमने नेटफ्लिक्स सर्च किया, नेटफ्लिक्स को सर्च करने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, जो सर्च इंजन हमको दे, सर्च इंजन में जो भी प्रोसेस होता है उसका जो रिजल्ट आता है उसे डॉक बोलते हैं। तो गूगल डॉक्स जो भी डॉक्स होता है इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक टूल आता है टीएसपी डॉक जनरेटर। ये रहा टूल टीएसपी डॉक जनरेटर, यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। अभी हमने जो ये कीवर्ड फाइंड किया है, ये सारा कीवर्ड, इसको हम सेव करेंगे। टीएक्सटी फाइल में। अब ये जो हमारा टूल है, इस टूल के हेल्प से हम डॉक्स को जनरेट करेंगे। तो डॉक्स को जनरेट करने के सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स दिए गए हैं सब पे हमको टिक करना होता है। इसके बाद हमने जो कीवर्ड्स अभी जनरेट किया है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और क्रैकिंग अगर क्रैकिंग हमें कभी भी करना है तो उसके लिए हमको आरडीपी का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमको इंटरनेट बहुत ही अच्छे स्पीड में मिल जाता है। क्योंकि हमको जब डॉक्स या कुछ भी यूआरएल्स वगैरह हम जनरेट करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसके लिए हम आरडीपी का यूज करेंगे। आरडीपी हम कौन सा ले सकते हैं, गूगल क्लाउड का होता है, एडब्ल्यूएस का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, किसी का भी हम आरडीपी यूज कर सकते हैं। और आरडीपी यूज करना कैसे है ये बता देता हूँ मैं पहले। मान लीजिए हम एडब्ल्यूएस की आरडीपी यूज कर रहे हैं, अमेजॉन वेब सर्विस है। यहाँ पे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। और उस सर्वर से हमको अपने पीसी को कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे लॉन्च इंस्टेंस पे, और यहाँ पे हमको देखो लिनक्स, मैक ओएस, उबंटू, विंडोज, रेड हैट, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं। तो हमको सिंपली विंडोज पे काम करना है तो हम विंडोज क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसका कुछ नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ सिंपली एक की पेयर लॉगिन, हमको जहाँ से इसका पासवर्ड हमको फाइंड होता है, जहाँ से हमको पासवर्ड मिलेगा, जो हम इसको कनेक्ट करेंगे आरडीपी को अपने सिस्टम से, तो वहां से हम एक क्रिएट न्यू पेयर, यहाँ से एक फाइल डाउनलोड करेंगे। इसका कुछ नाम दे देंगे, मान लीजिए ये विंडोज का फाइल है तो इसको हम विंडोज लिख के विंडोज की पेयर क्रिएट की पेयर करेंगे।
यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से हम इसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये इंटरफेस इसका। फिर हम यहाँ पे सिंपली इंस्टेंसेस पे जाएंगे। यहाँ पे हमको देखो ये विंडोज दिख गया है कि ये हमने एक विंडोज का जो सर्वर है वो क्रिएट किया है। यहाँ पे पेंडिंग में है, अभी रनिंग स्टेटस में आएगा। इसको कनेक्ट कैसे करना है अब इसको देखते हैं। यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और हमको यहाँ से पहले तो किसी भी जैसे विंडोज पे लॉगिन करते जैसे अपना पासवर्ड मांगता वैसे यहाँ भी एक पासवर्ड मांगे, तो हम सिंपली आरडीपी क्लाइंट पे जाएंगे। आरडीपी क्लाइंट के बाद यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे रिमोट डेस्कटॉप फाइल। यहाँ पे ये भी डाउनलोड हो गया, दोनों चीज हमारे कंप्लीट हो गए डाउनलोड होके। अब हमको चाहिए पासवर्ड, तो यहाँ पे हम गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। 4 मिनट हमको वेट करना होगा इस टाइम लॉन्च करने के बाद पासवर्ड के लिए। ये रहा हमारा जो हमको कनेक्ट करने के लिए, इसको कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा। अब पासवर्ड हमारे पास तो है नहीं, ना ही हमें पता है कहाँ से मिलेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए हमको थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे 4 मिनट। आ गया, ठीक है। तो अभी हमने जो हैश फाइल, जो भी हमारा की फाइल हमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये रहा अपना विंडोज की पेयर डॉट पी एम। इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे। फिर यहाँ से हमारा ये देखो पासवर्ड आ गया। इसको कॉपी करेंगे हम और पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा जो सिस्टम है वो एक अलग आरडीपी से कनेक्ट हो गया है। मतलब एक अलग ही विंडोज को हम अब रन कर रहे हैं अपने सिस्टम पे। ये हमारा सिस्टम नहीं है जो हमने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है। ये अलग से एक हमको सर्वर पे एक विंडोज मिल गया जिसकी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी होती है, जो क्रैकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। ऐसा नहीं कि हमको आरडीपी यूज करना ही जरूरी है क्रैकिंग के लिए। हमारे इंटरनेट की स्पीड के लिए ही हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है और जो हमारा काम है वो बहुत इजीली हो जाता है। नहीं तो अगर हम अपने नॉर्मल विंडोज में करने जाएंगे तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे लग जाते हैं उस चीज करने के लिए, जो कि आरडीपी में बहुत इजीली। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा है तो आप यूज कर सकते हैं। आरडीपी यूज करने की फिर कोई जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा स्लो काम करता है क्योंकि ये पेड वाला नहीं है, इसलिए। अगर आप पेड वर्जन यूज करोगे तो बहुत अच्छा स्मूथ एकदम काम करता है, ऐसा लगता है कि आप अपने सिस्टम पे ही काम कर रहे हो। यहाँ पे हम इंटरनेट स्पीड एक बार चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है क्योंकि इसमें स्टोरेज वगैरह ज्यादा तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर हम पेड वर्जन में इसको अपने आप से कॉन्फ़िगरेशन करके इसको यूज करेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है हमको।
अब यहाँ पे हम मान लो इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं अगर, तो थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। ये बस आप लोग को दिखाने के लिए कि आरडीपी को हम अपने सिस्टम से कनेक्ट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास पेड आरडीपी है, उसका स्टोरेज हम बढ़ा के लेंगे, उसका रैम स्टोरेज जो कुछ भी होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, अगर हम उसको बढ़ा के लेंगे तो ये इतना स्लो वर्क नहीं करेगा। जैसे अपने सिस्टम में काम करते हो वैसे ही काम करेगा। और हमको यहाँ पे 1 Gbps तक की स्पीड मिल जाती है। तो यहाँ से हम अपना मतलब जो भी टूल्स वगैरह जो प्रोवाइड होंगे आप लोग को, वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके इसमें आप यूज करना। तो यहाँ पे ज्यादा जल्दी आप लोग को जो भी यूआरएल, इंजेक्टेबल यूआरएल, जो कुछ भी फाइंड करना हो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। जो कि हमारे सिस्टम में अगर हम नॉर्मल इंटरनेट स्पीड से करेंगे तो पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन ले लेता है एक एक स्कैनिंग में। तो यहाँ से अपना आरडीपी कनेक्ट हो गया। इसको बंद कर देते बहुत लोग। जब हम अपना आरडीपी यूज कर लेंगे तो फाइनली फिर से इंस्टेंसेस पे जाएंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट पे जाएंगे, इसको करेंगे स्टॉप। एक्शन पे जाएंगे, यहाँ फिर से जाएंगे इस पे, उसके बाद इसको टर्मिनेट कर देना है। अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो, अगर ये प्रोसेस नहीं करोगे स्टॉप और टर्मिनेट, तो आपका जो पैसा है, जिस भी आप कार्ड या वॉलेट से जिससे भी ऐड किए रहोगे अपने एडब्ल्यूएफ में, उससे पैसे कटते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे यूज करने के बाद इसको बंद कर देना बहुत जरूरी होता है। ये शट डाउन हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं, तब तक अपना आगे का देखते हैं जो हमने टूल यूज किया था। हमने टीएसपी डॉट जनरेटर यूज किया था। यहाँ पे देखो जनरेटेड करके एक आ गया है वहां पे बन के, जो हमने कीवर्ड से डॉक जनरेट किया था। यहाँ देखो नॉट वीपीएन का ढेर सारा कीवर्ड यहाँ पे 4,49,032 आ गए हैं। कम से कम हमको 10,000 डॉक्स तो जरूरी होते हैं क्रैकिंग के लिए, बहुत ही जरूरी होते हैं। 10,000 से कम डॉक्स नहीं होने चाहिए। अब इस डॉक्स का यूज करके हमको अपने अगले स्टेप पे जाना है। अगला स्टेप हमारा होता है हाई क्वालिटी डॉक के बाद हमको हाई क्वालिटी यूआरएल फाइंड करने होते हैं जो इंजेक्टेबल होते हैं। तो ये जो डॉक्स हमने जनरेट किया है, इसको हम सेव करेंगे, हमारे फाइल में सेव हो जाएगा। अब हमको चाहिए गेट हाई क्वालिटी यूआरएल। इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है ईजेट डॉग सर्चर। तो हम उस टूल पे चलते हैं, डॉग सर्चर, ये रहा सर्चर। इसको रन करेंगे, ये इसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम जो हमारा लगता है यहीं पे लगता है, इसी प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे हमको ढेर सारे यूआरएल्स जो होते हैं वो कलेक्ट करने होते हैं, उसको स्कैन करके कलेक्ट करना होता है। इसके लिए हमको सबसे पहले जरूरत होता है सोर्स। सोर्स में हम क्या अपलोड करेंगे? सोर्स में हम अपलोड करेंगे जो हमने अभी डॉक्स जनरेट किया है। यहाँ पे हमारा ये जनरेटेड कर ऑन करके था, इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद सबसे सबसे जो मतलब हमारी मुश्किल वाली काम होती है, जिसमें हमको पैसे से पेमेंट करना होता है, उसके लिए हमको प्रॉक्सी बाई करनी होती है। जैसे हम किसी मान लीजिए नेटफ्लिक्स का क्रैकिंग कर रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स एक
प्रीमियम क्वालिटी का है, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस हो, तो उसका मतलब उसका ट्रैकिंग करने के लिए हमको प्रॉक्सी जो है वो पेड लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम करके दिखा नहीं पाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये प्रॉक्सी खरीदना, ये सब करना। तो हम बस दिखा दे रहे हैं कि यूज कैसे होता है इस टूल का। तो हम यहाँ पे प्रॉक्सी क्लिक करेंगे। यहाँ पे शॉपify की प्रॉक्सी है, फ्री प्रॉक्सी है जो कि वर्क बहुत कम करती है। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड को हम कर लेंगे 200। बाकी सब ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे एक आता है एंटी पब्लिक करके, इस पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि जो लिंक जो मतलब नेटफ्लिक्स का जो भी लिंक प्राइवेट होता है, जो पब्लिक नहीं होता है, वो भी हमको फाइंड हो जाएगा। तो एंटी पब्लिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मेनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इतने सारे सर्च इंजन से हमको यूआरएल्स मिलेगा जितने यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन हमको सब में नहीं टिक करना है, सबसे नहीं चाहिए हमको। गूगल जो होता है, गूगल बहुत जल्दी हमारा जो प्रॉक्सी जो होता है या जो कुछ भी होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो हमको यहाँ सबसे अनटिक करना है। हमको यहाँ केवल सिलेक्ट करना है याहू, विंग एंड माई वेब सर्च। बस इन्हीं तीन ही सर्च इंजन से हमको लिंक उठाने हैं, याहू, विंग एंड माई वेब सर्च। उसके बाद हम यहाँ से सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये 3 से 4 घंटे, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है, 3 से 4 घंटे लेगा। और इंटरनेट स्पीड स्लो है तो 10 से 11 घंटे, 12 घंटे कुछ भी टाइम ले सकता है ये। अभी मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो इसके बाद यहाँ से हमको हाई क्वालिटी के ढेर सारे यूआरएल्स मिल जाएंगे। अब उन यूआरएल्स का यूज करके हमको अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसमें, गेट इंजेक्टेबल यूआरएल्स। यूआरएल्स जो हमको ढेर सारे यूआरएल्स फाइंड होंगे, उसमें सारे में डेटा तो नहीं होगा, ना ही सारे मतलब इंजेक्टेबल होंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए कौन से यूआरएल्स हमारे जो इंजेक्टेबल है, इसमें हमारा डेटा है, उसके लिए हम एक नए टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है एसक्यूएलआई डंपर। इसको ओपन करते हैं, इसका इंटरफेस समझाते हैं। ये कुछ ऐसा शो होगा जब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो, ऑनलाइन स्कैनर है, यूआरएल एनालाइजर है, डंप एसक्यूएल है, फाइल डंपर है, टूल, इसको छोड़ दो। सबसे पहले हम यहाँ पे आके यूआरएल्स क्यू में हमारे 10 दिखा रहा है, जो कि हमने पहले से इसको रखा हुआ है यहाँ पे। इसको हटा देते हैं। जब इस टूल का यूज करना होगा तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे टूल को। यहाँ पे एक टीएक्सटी फाइल आएगा, इस पे जाएंगे। यहाँ पे एक यूआरएल लिस्ट नाम की, सब मतलब जब भी आप कोई टूल यूज करोगे उसका जो लॉग्स होता है उसमें पड़ा रहता है, तो इसको हम डिलीट करेंगे पहले यहाँ से। यहाँ डिलीट किए। अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाए, न्यू टीएक्सटी फाइल बनाएंगे। रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं, हम यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम लिखना है यूआरएल, कैपिटल में रहेगा, और टीएक्सटी ये स्मॉल में रहेगा, इसी फॉर्मेट रहेगा। इसको क्लिक करेंगे और हमने जो अभी डॉग सर्चर से जो हमने अभी लिंक सारे फाइंड किए हैं उसको कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करना है और सेव कर देना है। उसके बाद इस टूल को लॉन्च करना है। टूल को लॉन्च करोगे, टूल को लॉन्च करोगे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, सब जगह जीरो दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने यूआरएल तो फाइंड कर लिया, यूआरएल हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, या हम वहां पे जैसे बताएं मैनुअली जाके वहां पे अपना यूआरएल इसमें अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ एक्सप्लॉइट टेबल पे जाएंगे। एक्सप्लॉइट टेबल पे जाने के बाद हमको यहाँ से ऐसे यूआरएल फाइंड करने हैं जिसमें हमारे डेटा है, जो हमारे काम का है, जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिस लिंक को। वहां पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इसको हम 100 कर देंगे, 100 ऐसे मैनुअली रहने देना। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे स्कैन करेगा। जितने यूआरएल्स होंगे उतना ही हमारा टाइम लगेगा। इसमें भी हार्डली 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो हमने अभी जो इसमें दिया हुआ था यूआरएल, इसमें एक भी एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं मिला। जब हम प्रॉपरली एक प्रॉपर वे में प्रॉक्सी बाई करके सब कुछ जो है प्रॉपर वे में करेंगे, जिसमें हमको टाइम देना पड़ेगा, 1 दिन तो लग जाता है किसी भी प्रीमियम अकाउंट को क्रैक करने के लिए, क्योंकि
जब हम डॉग सर्चर यूज करके लिंक फाइंड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी तो करके दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। तो हम यहाँ पे एक्सप्लॉइटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कोई यूआरएल नहीं मिला, लेकिन उस टाइम पे जब हम सब कुछ प्रॉपर वे में करेंगे, एक एक स्टेप बढ़ेंगे करके प्रैक्टिकली, तो हमको यहाँ पे ढेर सारे यूआरएल्स मिल जाएंगे। यूआरएल्स मिलने के बाद अब हमको उसमें फाइंड करना है कौन सा इंजेक्टेबल है। अब उसके बाद हम इंजेक्टेबल पे जाएंगे। हमारे पास तो एक्सप्लॉइटेबल यूआरएल पहले से इसमें ऑलरेडी अटैच रहेंगे। इंजेक्टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इसको हम 100 करेंगे। 100 करने के बाद फिर से हम स्टार्ट एनालाइजर पे करेंगे। फिर यहाँ पे हमको ढेर सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पे हम यहाँ नीचे देखो सर्च का ऑप्शन है, इसमें हमको क्या क्या जरूरत होता है। हमको किसी भी प्रीमियम अकाउंट में क्या क्या जरूरत होता है, पासवर्ड जरूरत होता है, ईमेल जरूरत होता है, और किसी किसी में हमको यूजर पूछता है। तो इतना चीज हम क्लिक करेंगे इस पे। उसके बाद यहाँ पे जो भी यूआरएल्स आए होंगे उन पे एक एक यूआरएल्स पे जाके हम प्रॉपरली यहाँ पे एक एक यूआरएल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो होता है, किसी भी यूआरएल पे क्लिक करेंगे इंजेक्टेबल वाले पे, उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जब स्टार्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस यूआरएल का जितना भी डेटा होता है, जो भी डेटा होता है, वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। उस डेटा में हमको फाइंड मतलब क्लियरली लिखा रहेगा कि उस डेटा में जो हमारा डेटा आएगा उसमें हमको मेंशन होगा कितने, क्योंकि हमारा जो एसक्यूएल होता है रोज और कॉलम पे चलता है, तो उसमें लिखा होगा हमारा ईमेल के कितने कॉलम्स हैं। मान लीजिए 80 कॉलम लिखा होगा, और पासवर्ड भी इतने ही होंगे, पास भी हमारे 80 होंगे, और यूजर कितने होंगे, यूजर भी 80 होंगे। ये चीज हमको मिल जाएगा वहां से डेटाबेस जब डंप करेंगे। इतना क्लियर है सबको? इतना सबको क्लियर है? डू वी कनेक्ट टू द सर्वर मेनी टाइम्स एंड मेनी यूजर एट द सेम टाइम? नहीं नहीं, आप जब अपना एक बार आरडीपी यूज करोगे अपने सिस्टम में, तो आपका अपना एक यूनिक पासवर्ड होगा। आप कहाँ से कनेक्ट हो रहे हो, आप न्यूजीलैंड से हो रहे हो, कहाँ से हो रहे हो, वो आपको पता होगा बस केवल। तो आप अपना पासवर्ड, अपना आरडीपी जो भी बनाओगे, एक सिस्टम के लिए यूनिक पासवर्ड आता है। यूनिक जो हमारा अभी हैश नहीं आता जिसको हम डिक्रिप्ट किए थे पासवर्ड फाइंड करने के लिए। हाँ, अभी पूरा क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी पूरा प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहे हैं ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है अभी उतना प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो भी यूआरएल्स आएंगे, जो हम यहाँ पे इंजेक्टेबल वाला जो हमने स्टार्ट किया था, जो इंजेक्टेबल यूआरएल्स होंगे वो सारे बंडेबल होंगे। वहां से हम सारे डेटा डंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इतने चीज फाइंड हो जाएंगे। फिर एसक्यूएल से डेटा डंप करना तो बहुत ही आसान होता है, इतना तो सबको आता होगा अभी तक। एसक्यूएल में डेटा कैसे होता है, कैसे उसको डंप किया जाता है, अभी प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहे प्रॉपर वे में, नहीं तो अभी एक एक यूआरएल करते दिखाते, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है यहाँ पे, और बहुत कुछ प्रैक्टिकल दिखा भी नहीं सकते ऐसे पब्लिकली। तो यहाँ पे इतनी चीज आ जाएंगी। लेकिन ओके, नहीं पता, ठीक है, आगे कोई और एक सेशन होगा तो उसमें हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, कि मैं पहले से करके रखूंगा, उसके बाद उसका बस डंप करके दिखा दूंगा डेटा। हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टफ? इससे आप बचने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है जो हमारे पासवर्ड होते हैं हैश फॉर्म में होते हैं, आप एक प्रॉपर पासवर्ड रख सकते हो। एक को मतलब डिहैश करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाए, जिससे क्रैकर जो होता है उसको हैश मतलब हैश को क्रैक ना कर पाए। क्योंकि अभी नॉर्मल तो देखोगे सबका पासवर्ड, किसी का नाम, किसी का फोन नंबर, यही सब होता है, तो इजीली हमारा क्रैक्ड हो जाता है। इतना सब मिलेंगे जब, तो यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड होगा वो हैश के फॉर्म में होगा। जो हैश के फॉर्म में पासवर्ड होगा, तो उसको डिहैश करने के लिए भी हमको एक नया मतलब हमको सबसे पहले तो हैश के फॉर्म में होगा, उसको फाइंड करना होगा कि कौन सा हैश है।
MD5 है, MD4 है, SHA-256 है, कौन सा है, इसको मतलब पहले फाइंड करेंगे। उसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे मिल जाता है हैश आइडेंटिफायर। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ढेर सारे वेबसाइट मिल जाते हैं, हैश एनालाइजर है यहाँ पे। यहाँ पे हम अपना जो हैश आया होगा पासवर्ड का यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा साल्ट का हैश टाइप क्या है, इसका सब कुछ मतलब जो डिटेल होता है। अगर हमको एक बार हैश टाइप पता चल गया, मान लीजिए हमको हैश MD5 का हैश पता चला, तो MD5 डी हैशिंग कर लेंगे यहाँ पे। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ऑनलाइन, यहाँ पे ढेर सारे मतलब वेबसाइट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप डिक्रिप्टर यूज कर रहे हो, डिक्रिप्टर पे क्लिक करोगे, या फिर यहाँ पे बहुत ढेर सारे जो हमको है जहाँ टूल्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, जो कि बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। बस यहाँ पे सर्च करोगे, अपने आप ढेर सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। वहां पे आप जाओगे, हैश क्लिक करोगे, उस पे फिर ऑनलाइन उस पे ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे देखो आ रहा है इनक्रिप्ट करने का। यहाँ पे डिक्रिप्ट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे अपना हैश डालोगे, फिर यहाँ पे इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो हैश होगा टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा इजीली, तो हमको आईडी और पासवर्ड दोनों इजीली मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि मतलब हमारे पास तो एक यूआरएल तो आएगा नहीं, कम से कम 10,000 15,000 ऐसे ढेर सारे, जो हम SQLite डंपर में सर्च करेंगे उसको, तो ढेर सारे यूआरएल्स आएंगे हमारे पास। जब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, इंजेक्टेबल वाले पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे हमको ईमेल चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है और यूजर चाहिए होता है किसी भी प्रीमियम को लॉग इन करने के लिए, प्रीमियम अकाउंट को। यहाँ पे एक लिंक रहेगा, तो उस पर ऐसे नहीं देखना है कि किस लिंक, कौन से लिंक पे हमको क्लिक करना है। उसमें प्रॉपर तुमको मेंशन रहेगा इसमें इतना रो है, इतना कॉलम है, तो जिसमें ज्यादा रो ज्यादा कॉलम होगा आप उस पर क्लिक करना, उसके बाद स्टार्ट करना, फिर तुमको वहां दिखा देगा कि कितना इसमें रोज है, कितना कॉलम है। तो जिसमें ज्यादा रोज ज्यादा कॉलम होंगे उस पे जाना, और उसका जो भी मतलब है हैश फॉर्म में जो पासवर्ड होगा उसको कॉपी करना, और इजिली ऑनलाइन जाके उसको डिहैश कर लेना। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि जितने भी हमने पासवर्ड डिहैश किए हैं सारे ही हमारे यूज हो जाएंगे। जितना है मतलब मान लीजिए हमने 100 पासवर्ड आईडी पासवर्ड निकाले वहां से, जरूरी नहीं कि 100 के 100 वहां पे हिट करेंगे तुम जब भी यूज करोगे। मान लीजिए हम नेटफ्लिक्स का किए, नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, लॉग इन करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो क्रैक किया है आईडी पासवर्ड सारे के सारे ही वहां पे यूज हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उसमें मोस्टली 80 टू 85 तो पक्का यूज होंगे, कंफर्म है ये। हमने तो बस केवल 100 बताया, वहां पे तुमको 800 900 1000 1500 ऐसे ढेर सारे मिलेंगे, तो वहां पे धीरे धीरे तुमको एक एक कुछ चेक करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे डॉग सर्चर से, जो डॉग सर्चर हमारा टूल है, जब वहां से हम यूआरएल्स फाइंड करेंगे ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगता है, जब हम गेट हाई क्वालिटी यूआरएल्स फाइंड करते हैं डॉग सर्चर के यूज से। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टूल है अपने आप में। इसको यूज करने के लिए एक प्रॉपर अच्छा इंटरनेट होता चाहिए, बहुत ही स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, तब आप 2 से ढाई घंटे में उसको यूज कर सकते हैं। इसी इसी टूल को यूज करने के लिए हम ज्यादातर आरडीपी का यूज करते हैं, क्योंकि आरडीपी हमको एक अच्छा इंटरनेट स्पीड मिल जाता है। इतना सबको क्लियर है? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? कम से कम कितना एमबीपीएस स्पीड चाहिए? कम से कम अगर आप आरडीपी यूज कर रहे हो, कोई सा मतलब फ्री वाला आरडीपी भी यूज करोगे, तो उसमें कम से कम आपको 250 से 300 एमबीपीएस स्पीड मिल जाएगी इजीली। लेकिन उतना तो बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है, कम से कम 500 से 600 एमबीपीएस स्पीड होनी चाहिए। बाइंग प्रॉक्सी, हाँ प्रॉक्सी बाई करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे प्रॉक्सी क्लिक करो, आईपी प्रॉक्सी पे जाओ। यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, यहाँ पे देखो $0.7 में 1 GB प्रॉक्सी दे देंगे, HTTP या SOC 5 सब कुछ दे देंगे यहाँ पे।
बहुत सारे वेबसाइट है जहां से आप इसको बाय कर सकते हो प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी हमेशा सॉक्स 5 ही लेना। क्रैक सॉफ्टवेयर तो मैं प्रोवाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी उसका इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करना है। 1000 Mbps नहीं नहीं, कोई दिक्कत ना, 500 MB 600 Mbps पे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मुझे आगे इंस्ट्रक्शन आता है, क्योंकि मैं तो एज ए गेस्ट लेक्चर ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर लेक्चर के साइड से कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी टूल्स यूज होंगे, जो भी कुछ भी यूज होगा, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा अगर लेक्चर के साइड से कुछ भी इंस्ट्रक्शन आता है तो। और किसी को कोई डाउट? आरडीपी तो सब लोग कनेक्ट कर लोगे ना? आई हैव दिस टूल बट दे ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ फाइल, कैन आई डिलीट देम? हाँ, डिलीट कर सकते हो। हाँ, जितने भी रिजल्ट पहले से हैं उन सबको हटा दो, अपना जो न्यू रिजल्ट आएगा उसको यूज करो। ब्लैक हेड इंडिया कहाँ का है सर? अपोस इंडिया का ही है। प्रीमियर प्रो एडिटर सॉफ्टवेयर क्रेडिट मिल सकता है, आप इस प्रोसेस से इसको खुद करेक्ट कर सकते हो। मीन्स स्टेट, स्टेट में क्या बताएं, ऑल ओवर इंडिया में चलता है। पूरे इंडिया में नहीं है, बाहर में भी चलता है। आरडीपी बाइंग। हाँ, आप अभिषेक, आप एडब्ल्यूएस का यूज कर सकते हो, उसमें कुछ टाइम के लिए आपको फ्री का भी मिलेगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बाई करके यूज करना, आप जितना बाई करोगे उतना ही पैसा लगेगा। आप जब तक उसको रन में रखोगे, इंस्टेंसेस को अपना रन करोगे, तभी तक का तुम्हारा चार्ज कटेगा, और बहुत चीप है ये, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेता है। इजिली आप इसको बाई कर सकते हो। आप आरडीपी क्रैक्ड भी कर सकते हो, लेकिन अभी उतना टाइम है नहीं कि आरडीपी क्रैकिंग बताएं हम, आप प्रैक्टिकल करके। कि अगर आगे कोई और सेशन हमको इंस्ट्रक्शन आता है, कुछ अलग सेशन लेना है या इसका कुछ प्रैक्टिकल दिखाना है, तो आगे के सेशन में आपको बता दिया जाएगा। लेक्चर आपको मतलब ग्रुप में इंस्ट्रक्शन दे देंगे, कब से कब क्या, मतलब कौन सा सेशन होगा, प्रैक्टिकल कितना करना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा। एनी अदर क्वेरी? हैकिंग कोई कहीं से सीखता नहीं है, बस एक रास्ता दिखाया जाता है और खुद से प्रैक्टिकल करना होता है। हैकिंग को सीखने के लिए आप जितना प्रैक्टिकल करोगे, क्योंकि इस दुनिया में वर्ल्ड में मतलब डेली नई नई चीजें होती रहती हैं। वन मोर क्वेश्चन मे बी नॉट फ्रॉम दिस सेशन, कैन आई आस्क वेयर आई मिस्ड सम क्लास? हाँ, पूछ सकते हो। लेजिट ऑनियन लिंक्स वर्किंग? आप गूगल पे सिंपल सर्च करके फाइंड कर सकते हो ऑनियन का लिंक, जो कि लाइव होते हैं। हाँ, फ्री प्रॉक्सी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर अदर, जैसे मतलब नॉट वीपीएन वगैरह हो गया जो प्रीमियम है, अगर उसको आप क्रैक कर रहे हो तो वहाँ फ्री प्रॉक्सी नहीं यूज कर सकते हो। जैसे लाइक छोटे मोटे हमारे hulu.com हो गया, उसका हम फ्री प्रॉक्सी से यूज कर सकते हैं। और फ्री प्रॉक्सी भी आपको गूगल पे इजिली मिल जाएंगे, सर्च करेंगे तो। Okay, is this session over? यस, इट्स ओवर। Okay, let me see if there is any queries regarding these tools.
Okay, I have to open loads of files from United product. Yes. Okay, so if there is any more queries, guys? How many of you got the things? Like at least more than 50%. Okay, and rest बाकी लोगों को बिलो 50% समझ में आई. Okay, that's fine. 50% understood. So how many of you are like able to do the same practical, like after like doing a practice or whatever the tools you guys have like just watched now? Is there is anyone? Okay, so be ready. Maybe I'll test someday. Maybe we will implement to select the candidates on the basis of some test or like some CTF based on the black hat hacking. Practicals में doubt आया देना. No, no, our motto is not to like guide step by step in a black hat hacking. So we can't like कि हम पूरा practicals तक साथ में वो कराएं. फिर तो वो illegally चला जाएगा totally 100%. Our motto is to guide so that like if anybody is like looking for those things, so they can do in a better way. At least they're having a brief idea कि चीजें कैसे होनी है and what are the tools we are involving. So if you guys will more search for those tools, तो आपको उस पे ज्यादा बेहतर knowledge मिल जाएंगी. Like individually for each and individual tools, like in Google or like YouTube or like in Telegram. Okay, is there is any? Yes, we'll try because we have not disclosed any practical things, so we can probably within 1 or 2 days. We'll provide the tools. We'll think about these things. But we'll share whatever the steps we have been followed and what are the tools we have been followed. So everything in a written format or in a text format, we'll share out that. So these tools are available actually, but it will take some time or like, but find out करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो. Okay, so here is a hint kind of thing. So whatever the modules we have covered in a part 1, part 2, part 3, and probably we are having the part 4 too. So on the basis of these 4 sessions, we are going to take a test. So otherwise इससे बाहर से भी questions आ सकते हैं. On the basis of that, we'll try to select some of the candidates. Okay. So for that, I guess I'm sharing a particular link. Okay. So in that particular link, we'll dismiss that after the selections. So in between these months, whenever we'll select, so there is no mean to add on. Give me 1 minute, guys.
Okay. So that is not a actual group. So basically that is made for selecting. So once the process will be over, we'll dismiss that. Okay. Again, I'm repeating. Okay. Is there is any issues? So tomorrow we are having another guest sessions, guys. So with a trainer, like those who are going to take the internship. So they'll let you know like what are the contents we are going to cover up, and in between their sessions, I'll let you know like what are the selection criteria and like durations and modes and all and all. Okay. So just keep patience and stay connected in social media. ओके एंड जो लोगों को बोला गया था, जो रनिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्स्ट्रा क्लासेस शेड्यूल्ड हुई थी, तो हो सकता है कि कल वो होंगी, लाइक इन फर्स्ट हाफ और लाइक सेकेंड हाफ डिफरेंट बैचेस के. ओके, बिकॉज इन नाइट वी हैव अ गेस्ट सेशन, सो उस टाइम पे हम कर नहीं सकते, सो विल ट्राई कि हम उसको पहले ही कवर अप कर ले. ओके, चलो, और किसी कोई डाउट है? अदरवाइज विल वाइंड अप दिस सेशन. Okay, then bye bye guys. There is no option without like going through a test phases. बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ब्लैक हेड्स पे काम करते हैं, बट विदाउट माय इंस्ट्रक्शंस दे विल नॉट प्रोसीड. उनको ही पता है, उन्होंने बिना मेरे इंस्ट्रक्शंस के कुछ भी चीजें प्रोसीड हुई, सो अकॉर्डिंगली मैं एक्शन लूंगा और मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएंगे. ठीक है, चलो, और किसी के कुछ? ओके, देयर इज वन अनदर इंफॉर्मेशन, अभी मुझे सडनली याद आई. अपकमिंग वीक में हमारी जो है, आई हैव इनवाइटेड सम ऑफ द बॉग बॉन्टी स्पेशलिस्ट जो रेगुलरली उस पर काम कर रहे हैं. सो वी आर प्लानिंग कि एवरी वीक हम ऐसे प्रोफेशनल्स को इनवाइट करेंगे एंड दे लेट यू नो कि वो अपने अपने एक्सपर्टीज एरिया में, अभी जितने भी कनेक्शन है हमारे या जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन कर रखा है, सो दे आर डूइंग गुड इन देयर फील्ड. सो उनमें से जो सिलेक्टेड मुझे लगते हैं कि जिनके एक्सपर्टीज ठीक है, वो काबिल है उसके, तो विल इनवाइट. सो बॉग हंटिंग में भी जिन लोगों का बॉग बॉन्टी के साइड में था, सो आई आस्क देम टू कि वो लाइव करा सके कुछ चीजों को, बग्स वगैरह फाइंडिंग में. तो जिनके बग हंटिंग की ओर जा रहे थे उनके लिए वो फायदे हो सकते हैं. ठीक है, ओके, देन आई एम लिविंग दिस ग्रुप गाइस. ओके, वी कैन माइंड अप दिस.